Hi guys, welcome back. In today's Q4 FY24 result update, we are going to be discussing about three companies: Jupiter Lifeline Hospital, Sirma SGS Technology Limited, and Sapphire Foods. Okay, so first let us start with Jupiter Lifeline Hospital. Okay, so Jupiter Lifeline Hospital, it is a regional hospital that is concentrated in the region of Maharashtra, right? When they started during IPO, before the IPO is fairly recent. I would say not even a year long. So if you see, right, they had three hospitals at that time: one in Thane, one in Pune, and one at Indore. Okay, and the plan was, when they came during IPO, they had told like whatever the money that we raised through IPO, it is going to go for two reasons. One is to clear the debt that we have, and the second is we want to expand our hospitals. Okay, so when they came, they had a plan to double the bed capacity, the current bed capacity whatever they had, they wanted to double it and take it up to around 2,500 hospitals. And out of this, they wanted to add like 1,300 new beds through new hospitals. They wanted to construct or acquire three new hospitals and go through that route and increase the bed capacity. And they always and they wanted to increase this bed capacity again in 5 years, in a 5 years span of time. And one thing about this Jupiter Lifeline Hospital is, they've always guided for this 15% kind of growth. That is what they're targeting. And of course, right, if you take their bed capacity expansion from the time they were at IPO to the 2,500 beds also, it comes up to, in a span of 5 years, it comes up to that 15% to 20% ka CAGR in that rate. Okay, so now coming to the Q4 FY24 result, again the company has done right at par with the guidance. They've guided for 15% the kind of growth, and they've done that similar kind of growth only. And this company has been doing fairly well, I would say, for the last, from the time they've come to the IPO. After the IPO, they've done that fairly, that 15-16 kind of percent only growth, whatever they've guided for. Okay, so if you look the revenues for from Q4 to Q4, that is last Q4 to this Q4, it has grown by around 16.5%. Okay, and on a QOQ basis, like from Q3 to Q4 also, it has grown by 6.52. If you look at a full year, that is FY23 to FY24, right, that also has grown by around 15.8%. Now PAT also, if you look, PAT on a Q4 to Q4, it has grown by 59% on a year-on-year basis, and QOQ में hardly like it is like 2% का change हुआ है. Again on an FY23 to FY24 also has grown by 50%. अगर आप देखते हो उनका पैट मार्जिन also has increased. लास्ट ईयर पे 13% था लास्ट Q4 में, इस Q4 में it is around 16%. ठीक है, सो ओवरऑल आई वुड से राइट ऑफ द बैट अगर आप करते हो ना, वेरी गुड सेट ऑफ रिजल्ट. तब उनका केपेक्स के बारे में अगर ऐड करते हो, उसका बारे में बात करते हो, तो उनका 3 हॉस्पिटल था, थाने, पुणे एंड इंदौर में. एंड इंदौर में दे वांट टू ऐड एक्स्ट्रा 75 बेड्स. ओके, एंड यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस का एम्पैनलमेंट होने वाला था, एंड दैट ऑल्सो हैज़ बिन कम्प्लीटेड. पुणे एंड ताने में ऑल्सो दे हैव डन दिस रीनेगोशिएशन फॉर द इंश्योरेंस कंपनी. ना वाई दिस इंश्योरेंस थिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इज, अगर आप उनका पेयर मिक्स देखते हो, 50 to 52% आता है इंश्योरेंस सेगमेंट से, और बाकी का जो है 48%, 45 to 46% आई वुड से आता है सेल्फ पेयर मिक्स से. सेल्फ पेयर मिक्स का मतलब जब आप ट्रीटमेंट लेते हो और कैश से पेमेंट करते हो, और सिर्फ हार्डली 1 to 2%, 1.5% आता है गवर्नमेंट का पेयर मिक्स है. नाउ इनका हॉस्पिटल का कहना है कि लाइक हम लोग, इट इज़ आर चॉइस, इट इज़ आर खुद का चॉइस टू कीप दिस गवर्नमेंट का पेयर मिक्स लो, बिकॉज हम जब एक हॉस्पिटल खड़ा करते हैं, हम एक लैंड को परचेज करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें कुछ भी लाइक गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिलता, हम लेते भी नहीं है. इसलिए बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कीप दैट मेजॉरिटी ऑफ द इनकम कमिंग फ्रॉम आइदर इंश्योरेंस सेगमेंट और या यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेल्फ पेयर मिक्स. नाउ ऑफकोर्स अगर आपका 50% आ रहा है इंश्योरेंस सेगमेंट में, राइट, देन राइट, यू हैव टू कीप रीनेगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ये हॉस्पिटल का जो टाइप होता है, इट विल बी लाइक फॉर 2 years 3 years डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरर एंड द हॉस्पिटल, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट, ऑन वट एवर द स्कीम दे हैव. सो ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम they'll have to like keep renegotiating so that the hospital can take a price hike, and after that अगर यहाँ पे renegotiate होके price hike होता है, then उनका ARPOB जो है, हम जो वैल्यू ग्रोथ जो बोलते हैं हॉस्पिटल में, वो इंक्रीज हो सकता है. सो दिस इज अ गुड साइन कि लाइक उनका तीनों हॉस्पिटल में, पुणे, ताने और इंदौर में, ये एम्पैनलमेंट का रीनेगोशिएट होके इट इज गेटिंग फाइनलाइज्ड ओवर देयर. ठीक है, अगर आप केपेक्स के बारे में बात करते हैं, लाइक आई टोल्ड यू, उनका जो दे वांट टू पुट अप एक्स्ट्रा 75 बेड्स इन दैट इंदौर का हॉस्पिटल. ठीक है, नाउ ऑलरेडी 3 हॉस्पिटल है, एक पुणे में, एक थाने में, एक इंदौर में. महाराष्ट्र के डोंबिविल में उनका 500 बेड वाला एक और हॉस्पिटल आने वाला है. दिस वाज आल्सो अनाउंस्ड ड्यूरिंग आईपीओ, और ये जो हो रहे हैं इस केपेक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, एंड इट इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग. एंड इन Q4 FY26 में दिस हॉस्पिटल विल कमेंस. नाउ along with this, again in this quarter they have acquired
the land and they've started they've started another hospital in Pune. Again, this will be another 500 bed hospital. Now you can see that कि like जो भी इन्होंने IPO के टाइम में बोला था, right, whatever they have been telling they are doing it. पहले तो 15% का growth जो है, that is what they consistently doing every quarter, right, मतलब every year they are doing it. And the second thing अगर आप देखते हो in terms of capex जो उन्होंने बोला था that they want to take it up to, they want to double the bed capacity in 5 years time and they want to take it up to 2500 beds by putting up 3 new hospital. Already डोंबाविल में एक 500 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है, ऑलरेडी इस क्या बोलते हैं, और एक नया हॉस्पिटल आ रहा है पुणे में. सो 2 न्यू हॉस्पिटल्स आर ऑलरेडी देयर विथ 500 बेड कैपेसिटी ईच, राइट. एंड द थर्ड वन ऑल्सो दे गोइंग टू पुट अप अ न्यू हॉस्पिटल FY25 में, उसका बारे में अनाउंस करेगा. सो विथ ऑल दिस ना 5 हॉस्पिटल जो है, एग्जिस्टिंग 3 हॉस्पिटल एंड द एडिशन ऑफ 2 हॉस्पिटल, यू आर सीइंग अ विजिबिलिटी ऑफ ऑलरेडी 2200 बेड्स. सो इस 300 बेड के लिए प्रॉब्ली अगेन द थर्ड हॉस्पिटल से वहाँ से आ सकता है, ठीक है. सो ओवरऑल अ ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स. अगर आप उनको हॉस्पिटल KPIs भी देखते हो, इट इज़ क्वाइट स्टेबल, लाइक उतना कुछ चेंजेस नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, ARPOB और इन टर्म्स ऑफ आपका ALOS, राइट. ओवरऑल आई वुड से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स. तब यू माइट आस्क मी लाइक अरे प्रेरणा, ये तो लाइक सारा कुछ कर रहा है, मतलब ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, ROE भी थोड़ा सा डंका ही है, अगर आप देखते हो केपेक्स भी कर रहे हैं, और डिमांड भी है इस हॉस्पिटल में, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. देन वाई इज लाइक लाइक यहाँ पे तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि लाइक इन टर्म्स लाइक वन थिंग यू सी, अगर आपका सेक्टर में अगर लेट्स से देयर आर 5 प्लेयर्स, लेट्स से फॉर हॉस्पिटल सेक्टर में, ओके, नाउ देयर आर मेनी प्लेयर्स इन द हॉस्पिटल सेक्टर. मनी, आप एक चीज समझ लो, जब भी आप मार्केट में हो, नाउ द मनी विल फ्लो टू द बेस्ट प्लेयर आउट ऑफ देयर. इट्स लाइक इफ यू आर इन अ स्कूल, राइट, एंड देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ओनली द टॉपर विल गेट एट द एंड ऑफ द डे हाईलाइटेड, राइट. सब उसको ही भाव देते हैं अल्टीमेटली. सिमिलरली हियर ऑल्सो, नाउ इफ यू लुक एट द एंटायर हॉस्पिटल स्पेस, अगर आप यू कैन सी दैट लाइक यथार्थ में हाईएस्ट ग्रोथ है कंपेयर टू एनी हॉस्पिटल, दैट इज नंबर 1. अगर आप केपेक्स के बारे में बात करते हो, राइट, कंपेयर टू एनी हॉस्पिटल, अगर आप जुपिटर का देखो, इसका GPT हेल्थ केयर का देखो, मेदांता का देखो, सबका देखो, द रेट एट विच केपेक्स इज हैपनिंग इज द हाईएस्ट एट यथार्थ, बिकॉज दे आर प्लानिंग टू डबल देयर बेड कैपेसिटी इन 3 years, whereas this Jupiter is planning to do so in, I would say, in 5 years, right. So वहाँ पे भी, so in all parameters if you look, the Yatharth comes as a first boy of the class compared to the other hospital. So what you will see that is money will flow over there, like market में अगर आप देखते हो, again this is no buy or sell recommendation, don't take that, but I'm just giving you the logic कि like ultimately जब आप मार्केट में रहते हो ना, एक सेक्टर में, उसके साथ money will flow more towards the stock where जहाँ पे highest pace of growth होगा, highest expansion होगा. You would have seen that even in wire and cables, right. Wire and cables में अगर आप देखते हो, Polycab था, KEI था, RR Cable था, Havells था, but अगर आप सबका growth देखते हो तो Polycab was the one that was growing at the highest pace compared to other people. अगर आप इस क्वार्टर में भी देखते हो, Polycab grew at around like what 29%, whereas KEI grew by 18%, so 50% more than KEI it grew. इसलिए आप देख सकते हो Polycab का रिटर्न देखो और KEI का रिटर्न देखो, मतलब the money went more towards Polycab than let's say KEI. Like even KEI also gave returns, but the rate at which the money grew in Polycab was more compared to that of KEI. यही मैं आपको like समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि like ultimately the best player, like everybody will make money when there is a tailwind in the sector ना. उस सेक्टर में जो कोई भी प्लेयर है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करे, उसमें ग्रोथ है, कोई भी झंझट नहीं है, तो वो भी पैसा बनाएगा. बट जो फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास है ना, वो ज़्यादा पैसा बनाएगा कंपेयर टू एनीथिंग. द सेम थिंग आई कैन टॉक अबाउट द IT सेक्टर इन 2020, राइट. लाइक जब ये कोविड में था, we were coming right out of COVID, right, and we saw that everything wanted to get digitalized, everything was going to cloud and everything. There also you saw कि like सब IT companies में उस time पे, वो 2020-2021 के period में, all the IT companies made money ultimately, but Tata Elxsi was the one stock that made the most money for shareholders compared to LTTS हो, Happiest Mind हो, Persistent हो, TCS हो, Infosys हो. Why? Because Tata Elxsi was the highest growth engine. वहाँ पे तो एक time था जब ये Tata Elxsi 10% grow कर रहा था QOQ and 40% on a year on year, and I remember this very well क्योंकि वो 6 क्वार्टर में ना 40 like 10% QOQ का चेंजेस और 40% का ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली वो उस रेंज में कर रहा था. that is why you saw that the money flew there compared to other places also. So this is what I'm trying to tell. The other thing is like again जो भी कॉन कॉल में डिस्कस होगा, and then we will go look at the balance sheet and cash flows when I discuss the Jupiter का कॉन कॉल, and all this सारा मैं क्या करूँगी ना, जब कॉन कॉल आएगा ये Jupiter like सारा हॉस्पिटल का एक सबका मैं
P2P एनालिसिस करके बताऊंगी, सो आई थिंक इट विल बी ऑफ इट विल प्रोवाइड इवन मोर क्लैरिटी कि लाइक ऑक्यूपेंसी में कौन बेटर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ALOS आरपॉप में क्यों बेटर हो रहा है, किसका एक्सपेंशन ज़्यादा है और वैल्यूएशन का सब हम वो कॉल के बाद ही हम लोग एक P2P का मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज सफायर फूड्स लिमिटेड। नाउ अभी सफायर फूड्स का अगर आप देखते हो QSR में, इफ़ यू लिसन टू माई वीडियोस इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स आई हैव टोल्ड यू के लिए QSR में जो प्रॉब्लम्स है, एक हुआ तो एक कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया बिकॉज नाउ एवरीबडी क्या बोलते हैं, एवरीबडी हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बिकॉज ऑफ अ फूड डिलीवरी ऐप सच एज जोमैटो एंड स्विगी, ठीक है। एनीबडी कैन ओपन अ क्लाउड किचन एंड स्टार्ट डिलीवरिंग, सो कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया, इनका डिमांड कम होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट सफायर को जो भी प्रॉब्लम्स है इट हैज़ बीन कंटिन्यूइंग अगेन ओनली, मतलब रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है ओके 12% का ग्रोथ है, ठीक है, पर अगर आप उनका प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो ना, पैट जो है Q4 लास्ट ईयर में 135 करोड़ था। नाउ लिसन टू दिस, 135 करोड़ लास्ट ईयर Q4, इस साल पैट है इस Q4 में 2 करोड़। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कितना उनका प्रॉब्लम है, लाइक कितना मार्जिन कंप्रेस होकर यहाँ पे आ चुका है। अगर आप पैट मार्जिन भी देखोगे ना, मैं पैट मार्जिन के बारे में क्या ही बोलो, जो एक 135 करोड़ का लास्ट टाइम का प्रॉफिट था, अभी 2 करोड़ का, तो आप उसका पैट मार्जिन ही देख लो ना, मतलब पैट मार्जिन हैज फॉलन टू 0.07%। सो इतना बुरा हालत है इनका 3 मेन बिजनेसेस है, आई विल टेल यू। वन इज KFC इन इंडिया, पिज़्ज़ा हट इन इंडिया, एंड श्रीलंका में ये पिज़्ज़ा हट का दुकान खोलता है। सो KFC में अगर आप देखते हो जो SSG है, SSG इज दैट, मैं एग्जैक्ट नंबर्स बोलती हूँ, SSG जो लास्ट टाइम पे था, मतलब इन Q4 ऑफ FY23 वॉज 2%, इस टाइम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अराउंड -3%, राइट। अगर आप इनका रेस्टोरेंट एडिशन भी देखते हो, इस क्वार्टर में they've hardly added 23 रेस्टोरेंट, ठीक है। सो ओवरऑल यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर हियर। पिज़्ज़ा हट का अगर आप बात करते हो, पिज़्ज़ा हट इन इंडिया का और भी बुरा हालत है, बिकॉज राइट नाउ यू सी राइट इवन इन टर्म्स ऑफ पिज़्ज़ा, आपको अफोर्डेबल पिज़्ज़ा को यू गेट इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड नॉट ओनली दैट, नाउ तो आपको सार्डो पिज़्ज़ा वो पिज़्ज़ा सब कुछ मिल जाते हैं जोमेटो स्विगी में ही, ठीक है। द अदर थिंग इज लाइक द पिज़्ज़ा हट का जो प्रॉब्लम था, वो टोमेटोज़ का इन्फ्लेशन रेट हो, चीज़ का हो, डेयरी का हो, इट इज़ नॉट कमिंग डाउन, एंड उनका जो वैल्यू प्रोडक्ट्स है जो ये बेचता है, दैट इज़ वेयर दे आर सेलिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, पर यहाँ पे मार्जिन ही नहीं है। सो ओवरऑल इट इज़ लाइक जस्ट लाइक हाउ डू यू टेल, जो कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है ना एक बिजनेस में, ये ऑल एट द सेम टाइम यहाँ पे आके अटैक किया है ये QSR को। सो दिस इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं, रियली टेरेबल स्टेट आई वुड टेल। अगर आप पिज़्ज़ा हट का भी SSG देखते हो ना, लास्ट ईयर में था -4%, इस टाइम इस क्वार्टर में है -15%, आप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। एंड नॉट ओनली दैट, लास्ट टाइम इन्होंने बोला था Q3 का कॉल में कि लाइक देखो भाई, हमने तो 1 साल करके देखा है यहाँ पे पिज़्ज़ा हट को, लाइक लिटरली मैनेजमेंट हैज कोट एंड कोट, लाइक आई वुड टेल यू, इट हैज टोल्ड दिस, लाइक वी हैव ट्राइड दिस फॉर द लास्ट 1 year थिंकिंग inflation will get better, demand will get better, but unfortunately it has not happened. For the last 1 year the problem in fact is getting worse and worse, right? And they made a decision last quarter के like हम लोग अभी से पिज़्ज़ा हट का जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है, हम लोग किस जोर से ये एक्सपेंशन कर रहे थे उसको हम कम करेंगे, राइट। प्रॉबली इफ वी वर ओपनिंग 50 stores in 1 quarter, we'll probably reduce it to 20 or 30, like that's what I'm trying to give an idea of, they are reducing the number of stores they're opening. अगर आप Q4 में देखते हो ना, Q4 के इस क्वार्टर में they haven't opened even one single store with Pizza Hut, और लास्ट Q4 में अगर आप देखते हो द नंबर ऑफ स्टोर वॉज 1221, और इस साल में इस Q4 में अगर आप देखते हो द नंबर ऑफ स्टोर्स आर 1188, ठीक है। 1221 था लास्ट टाइम और अभी है 1188। सो क्या हुआ है यहाँ पे, दे हैव नॉट ओनली नॉट ओपनड न्यू रेस्टोरेंट, बट ऑल्सो जो रेस्टोरेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको भी क्लोज कर चुका है। सो द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट दैट हैज क्लोज्ड इन दिस ईयर इज मोर देन द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स दे हैव ओपनड ऑल्सो। सो ओवरऑल यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स है, ठीक है। श्रीलंका का बिजनेस अगर आप बोलते हो थोड़ा सा बेटर हो रहा है, SSG थोड़ा पॉजिटिव हो चुका है 2% में, दे हैव एडेड 6 न्यू रेस्टोरेंट, बट राइट मेजॉरिटी ऑफ द सेल इज कमिंग फ्रॉम KFC इंडिया और पिज़्ज़ा हट का है। एटलीस्ट KFC का हालत उतना बुरा नहीं है कंपेयर टू अदर पीपल, क्योंकि अगर आप देखते हो इवन इन टर्म्स ऑफ डिमांड और एनी पर्सपेक्टिव, व्हेन यू थिंक अबाउट फ्राइड चिकन, एक सिनोनिमस बन चुके हैं, लाइक फ्राइड चिकन मतलब KFC, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर दैट फ्राइड चिकन मार्केट शेयर कंपेयर टू ये बर्गर और पिज़्ज़ा का मार्केट शेयर तो हर कोई आके कहा रहा है यहाँ पे। सो that's about Sapphire.
द लास्ट वन इज सिरमा SGS. सिरमा अगर आप देखते हो ना, लाइक ये कंपनी था विच वॉज परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ था, अर्निंग्स ग्रोथ में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर भी था, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा था वहाँ पे, केपेक्स हो रहा था एंड एवरीथिंग. बट एक ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, तो पेस ऑफ ग्रोथ जो था बिजनेस में स्लो डाउन हो गया, बिकॉज उनका जो ऑर्डर बुक में था, देर आर सर्टन ऑर्डर्स दैट गॉट पुश्ड आउट, सच एज उनका ऑटोमोटिव, और लास्ट क्वार्टर में ऑटोमोटिव और उनका बहुत सारे सेगमेंट से ऑर्डर आते हैं, राइट. ऑटोमोटिव, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, ये सब में वो लोग इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइसेस बेचते हैं, राइट. इन ऑटोमोटिव सेक्टर एंड इन कंज्यूमर सेगमेंट में उनका एक ऑर्डर का पुश आउट हो गया था, एंड दैट ऑर्डर वाज वर्थ समवेयर अराउंड 100 to 150 करोड़, राइट. एंड उनका जो दूसरा सेगमेंट था, हेल्थ केयर सेगमेंट, दैट वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर सेगमेंट में दैट डिविजन वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. वहाँ पे डिमांड में रिवाइवल में थोड़ा मुश्किल हो रहा था. सो एज अ रिजल्ट यू सॉ इन Q3 जो था, थोड़ा पेस ऑफ ग्रोथ वाज लेस, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, एंड दिस वॉज हैपनिंग फॉर द लास्ट 2 quarters of this year. But finally in Q4 they really ended with a high note, because अगर आप उनका गाइडेंस के बारे में देखते हो, राइट, लाइक इन Q3 they had guided कि लाइक हम लोग इस पूरे साल को we will end the year with 3,000 crore in guidance, and that is exactly what they have done. अगर आप रेवेन्यू देखते हो, रेवेन्यू हैज ग्रोन 63% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, और QOQ अगर आप देखते हो 59%. सिर्फ अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखते हो ना, थोड़ा ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं मिला है, मतलब दी पैट जो है हैज ग्रोन ओनली बाय 5.6% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस. नाउ विल हैव टू आस्क द मैनेजमेंट के लाइक क्यों, लाइक आपका प्रॉफिटेबिलिटी में ऑल्सो लाइक क्यों दिक्कत आ रहा है अभी भी, बिकॉज रेवेन्यूज जो है इट हैज ग्रोन रियली वेल, रियली ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स आई वुड से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ. गाइडेंस भी अचीव किया है, मार्जिन भी इट इज अराउंड 7 to 8%, मार्जिन इज एट 8%, दे हैव गाइडेड फॉर 7 to 8%. सो ओवरऑल ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स. उनका जो हेल्थ केयर सेगमेंट, लाइक आई वाज टेलिंग यू, वहाँ पे भी रिवाइवल हो चुका है, मतलब दे आर ऑल्सो, इफ यू सी हेल्थ केयर सेगमेंट अगर आप बात करते हो, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% टू द टोटल रेवेन्यू, ठीक है. एंड यहाँ पे भी लाइक दैट हैज ग्रोन अराउंड 147% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. सो ओवरऑल आई वुड से अ गुड सेट ऑफ नंबर्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट आई वुड से गुड, आई वुड से ओके गुड सेट ऑफ नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा मिस हुआ है. विल जस्ट हैव टू सी, वेट एंड सी फॉर कॉन कॉल के लाइक क्यों ये ऑपरेटिंग लेवरेज मिस हुआ है, और क्या है मार्जिन का प्रेशर, ऑर्डर बुक कैसा है गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस क्या है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज लाइक इस सेक्टर में अगर आप देखते हो, ये EMS में और सिरमा में, गोइंग फॉरवर्ड डू दे सी एनी हेडविंड्स, द टेलविंड्स दैट वे देयर ऑल दिस ईयर्स, इज इट रियली स्ट्रॉन्ग और एवरीथिंग. सो ये सब कुछ थोड़ा देखना पड़ेगा, और आई थिंक यू विल गेट अ फुल क्लैरिटी यहाँ पे जब कॉन कॉल हो जाएगा, राइट. अंटिल देन आई थिंक इट विल बी वेरी टफ टू लाइक इवन आई डोंट वांट टू लाइक जज दिस कंपनी जस्ट बाय लुकिंग एट द रिजल्ट, बट दैट्स दैट. बट एटलीस्ट वन थिंग आई कैन टेल यू इज लाइक, एक तो चीज़ अच्छा है कि लाइक गाइडेंस जो बोला है वो किया है, एंड एटलीस्ट फार बेटर देन लास्ट 2 quarters. लास्ट 2 quarters तो बहुत गंदा था, बट एटलीस्ट दिस क्वार्टर आई वुड से गुड सेट ऑफ नंबर्स. सो दैट्स दैट फॉर टुडे, एंड वी विल we will see, we'll meet again tomorrow, and we will shoot what am I telling, we'll see again tomorrow. Bye.